Okay, so the only thing which is not changeable in the entire science of classification is species. So we must know what is a species. So hence we are classifying species. तो आपको पहली चीज तो मिल गई, आप क्या क्लासिफाई कर रहे हो, स्पीशीज को क्लासिफाई कर रहे हो. So you must know that what is species. Species is one thing, kinds are different thing. Dog is a species, and the Dalmatians, Pomeranians, German Shepherd, Labrador. These are the types or the kinds. So kinds are not playing any important role in our classification. We are considering only species. Okay, so the species. Now, what are species that we'll study here? होती क्या है species? किसको कह रहे हैं species? Why should we not call Dalmatian is separate species? और लैब्राडोर इज नॉट अ स्पीशीज और पमेरिन नॉट अ स्पीशीज. तो ये तो हमको मालूम है. तो देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. स्पीशीज को आपने क्या माना है? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. क्या है? ऑन द बेसिस दे ऑल आर मॉर्फोलॉजिकली अलाइक. दैट इज इफ यू लुक, they will have a similar appearance, similar structure, body structure, same places the structure, that is eyes are here, nose is here, teeth are 32 teeth is there, ear are there, बाल यहाँ पर है, यहाँ पे हुए हैं, and all. Dogs also you see, cat also you see behind. And you will find some have lines, some have got spots, some have got patches, some have got full body same color and all. तो वो अलग अलग चीजें हैं. तो कई सारे क्राइटेरिया यूज करें. Then there are anatomy and physiology. If you cut the body, and you will find that the several organ systems are there. They all are same in a species. All the members of a species will have same type of anatomy and same type of morphology. That is how they are functioning. Third thing, they will have same number of chromosomes. You take human being from any part of the world, same appearance. बड़े छोटे हो सकते हैं, मोटे पतले हो सकते हैं, कलर अलग अलग हो सकता है, बट these things are same. Internally the organs are same. Then even the number of chromosomes from any cell, from any part of the person, human being, you take, you will find that the number of chromosome is only 46. But now there is a problem. There are number of species which may have 46 chromosome. तो क्रोमोसोम का केवल नंबर नहीं देखना हमको, उनका टाइप भी देखना, उनका उनका शेप, साइज, बेंडिंग पैटर्न एंड ऑल. So for a species, all the members will have same type of chromosomes, number as well as type. That is again a very unique property. And the most importantly, when they are allowed to interbreed sexually reproducing organisms, they can potentially interbreed. You don't have to force them, or you don't have to use some devices, artificial insemination and all. No, they will potentially interbreed. But ये चार चीजें आपको कंसिडर करना है क्लासिफिकेशन करने के लिए, स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना. बट इट्स अ वेरी टिपिकल थिंग. You cannot always find that these four things are always true. Just now we are studying about the dogs. A variety of dogs are there where they are looking morphologically alike. किसी के बहुत बाल ही बाल है, किसी के बाल है नहीं, some are so high, some are very small. Morphology तो नहीं बैठ रहे वो, but anatomically or number of chromosome or interbreeding capacities are there. Sometimes you will find that the where will you find the similarity between the larva, pupa, and caterpillar and the butterfly? Now, caterpillar will never look like butterfly. Will you classify a caterpillar as a different species or a butterfly as a different species? If we just stick to morphology, this will lead to mistakes. So morphology alone is not a criteria of classification. You will have to consider the other things. Even anatomy is different in the caterpillar and the same in the tadpole and the adult frog. Number of other species is the same. तो ये तो differ करेंगे. Then what is true that the number of chromosomes will be same. They will not even interbreed because they are not matured only. तो वो interbreed कहाँ से करेंगे? तो इन सबको रखते हुए भी you will have to consider your intelligence, your observation. So morphology can also differ, anatomy can also differ, physiology can also differ in the different stages of life or different sex. ठीक है. Thirdly, the number of chromosomes can also differ. There are number of species in which the male has got half number of chromosomes than the female.
They are developed from the unfertilized egg. There are a number of species of the insect in which one chromosome is less than other in case of males in compared to the females. Female have one chromosome more. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कोई बहुत बड़ा पक्का गारंटेड क्या कहते हैं फैक्ट नहीं है. एंड पोटेंशियल इंटरप्रेट कहाँ इंटरप्रेट करेंगे? सपोज दे आर स्मॉल चिल्ड्रन और सपोज दे आर ओल्ड, they are lost the capacity of reproduction, or there are several animals which are seasonal, or there are several organisms which are breeding only once in a lifetime. हो चुका उनका ब्रीडिंग, अब क्या करोगे आप? How will you find? Suppose you got two individuals, how will you say that whether they two belong to same species? You are waiting and waiting for reproduction. Probably they may be of same sex, or they are impotent, or it is not their breeding season, or it is not the suitable condition for their reproduction. So there are number of reasons for that. They may not breed, or they may not breed in captivity. आप उनको रख रहे हो observation, वो नहीं करेंगे. वो तो they want a free environment where nobody is seeing them. So there are so many things which we have to consider. So defining a species is very typical thing. About you are studying the most common group where you are finding this much of difficulty. Then as you go high, genus and class and order and phylum and kingdom, तो कहाँ मतलब वहाँ तक कितने difficulty आएगी. So difficulties are there. It is not so easy कि आप ऐसे करो, हाँ भाई आलू बैंगन टमाटर को classify कर दिया कि this I like and this I don't like, or these are found in winter and these are found in the summers and these are found, or these are found in North India, these are found in South India. Those type of classification नहीं है ये. That classification will differ from person to person, from place to place, country to country. Okay, so वो classification कोई classification, हमारा classification, our classification should be such which should not have any chance of error, which should be unanimously accepted. ठीक है. सो इसके लिए हमको स्पीशीज को डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है. तो देखने में मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर मॉर्फोलॉजिकली अलाइक, बट सम डिफर्स. ठीक है, सम डिफर इवन द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर एनाटॉमिकली अलाइक, but some have different anatomy in their male and female, or in their different phases of life, like larva, pupa, caterpillar, etc., etc. Most of the individuals, they have got same number of chromosomes, but some may have difference. So there we have to use our brain, our experience, and most of the organisms can potentially interbreed. But suppose they are not sexually reproducing organisms, तो बैठे ही रहो फिर आप. वो तो asexually reproduce कर रहा है, आप कहाँ से पता करोगे whether they are breeding or not breeding? So it is a very typical thing. Okay, so in spite of close relationship between not all species are always have same morphology, anatomy, number of chromosome, or not even the sexually they are having sexual interbreed. So we already discussed on all these points here. Okay, so hence defining species is the most typical thing, which not only include those characteristics but even experience and the closer observation. Observation is very important. Now, what characteristics can be used for classification? Can we use height? Can we use color? Can we use the patterns which are found on the body? Sometimes we have to use the patterns. Sometimes patterns are not a very Dalmatians को spot मिल रहे हैं, but then Pomeranian में नहीं मिल रहे हैं, तो क्या आप उनको अलग स्पीशीज बोल दोगे? ठीक है. हाइट तो फिर Pomeranian is so small, Dalmatian is so big. Will you classify them into different species? No. So यहाँ there are so many things. तो selection of characteristic on the basis of which the classification is done is a very important thing. You have to choose right character, otherwise your classification will go wrong. So for the classification, the selection of the characteristic should be done with utmost care. Sometimes the size is important, at the other time it may not be. Sometimes the color is important, other time it may not be. Sometimes even the smell, even the particular type of tinge if you eat. Not every species you can't eat, every plant you can't eat. So the same, like eucalyptus, there are so many species of the eucalyptus are there. If you pluck their leaf and you smell, you will get different type of smells. Okay, so that is because of the different type of chemicals. So there are a number of things which we have to consider. Sometimes we consider size, sometimes color, sometimes number of appendages. 3 pair appendages insect, 4 pair appendages आपने बोल दिया साहब ये तो crabs होंगे, like they can be what you call
crustaceans, or they can be arachnids. Many period of many appendages तो आप कह देंगे millipedes है, और mammals हैं, they have got all 4 legs, but a human has got only 2 legs. तो हम तो सीधे खड़े हो गए ना. So और these are also considered as leg. तो ये कई सारी चीजें हैं इनको consider करना. What is taxonomy? Now next is what is taxonomy? So taxonomy is a branch of classification, the art of classification, the science of classification, whatever you say. The science of classification of the organism is called taxonomy. The word taxonomy is come from taxa. एंड टेक्सा का मतलब होता है ग्रुपिंग, कैटेगरीज. तो इट कंप्राइजेस ऑफ 3 थिंग्स. इसके 3 ब्रांचेस है, 3 स्टेप्स है. क्या? आइडेंटिफिकेशन. वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट whether this thing is already classified or not, whether what it belong to, whether it is an insect or whether it is a fish or whether it is invertebrate, whether it is vertebrate, whether it is a mammal, whether. तो आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा काम है. दूसरा क्या है? क्लासिफिकेशन. आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा. एंड तीसरा काम क्या है? उसको नाम देना पड़ेगा. यू विल हैव टू गिव इट अ नेम. अब आप बोलोगे सर नाम देना कौन सा मुश्किल काम है? भाई है, अभी पढ़ेंगे हम. ठीक है. तो क्या है, देखिए आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहली चीज क्या है? यू विल हैव टू आइडेंटिफाई. कई बार क्या होता है ना, व्हेन आई एम सिटिंग इन द स्कूल एंड सम चिल्ड्रन ब्रिंग, सर ये नया इंसेक्ट मिला सर, ये क्या है? अरे दुनिया बहुत बड़ी है, 20 लाख स्पीशीज है. आई विल नॉट बी नोइंग एवरी स्पीशीज, एवरी इंसेक्ट. ठीक है, देयर आर सम व्हिच आई नो, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आई डोंट नो. Sometimes they bring praying mantis, they might have seen first time. सर ये क्या है सर? ये तो पत्ता जैसा दिख रहा है. भाई ठीक है, बट नॉट ऑल स्पीशीज आर नोन टू एवरीवन. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन करना है सबसे पहला आपको. Now identification is very typical thing. So very first aspect of the classification is identify. We must be sure that the particular species is not been classified earlier. ठीक है. तो इसके लिए क्या करेंगे हम? आइडेंटिफिकेशन की लेंगे. आइडेंटिफिकेशन की जो है इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज अ इट्स सॉर्ट ऑफ बुक एंड देयर आर नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन जिसके आपको आंसर देने यस एंड नो में. सो व्हेन यू हैव टू ओपन द फर्स्ट चैप्टर पे गए, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा, वेदर इट इज अ माइक्रोस्कोपिक और लार्ज. इफ माइक्रोस्कोपिक गो टू सो एंड सो पेज, इफ इट इज लार्ज गो टू सो एंड सो पेज. ठीक है. आप माइक्रोस्कोपिक है, इट मे बी पेज, इट मे बी बुक, इट मे बी वॉल्यूम, वट एवर इट इज. ठीक है. बिकॉज 20 लाख स्पीशीज विल नॉट बी कैन नॉट बी समराइज इन वन बुक. सो देयर आर नंबर ऑफ बुक्स. तो वो लिखा होगा गो टू सो एंड सो वॉल्यूम, सो टू सो एंड सो वॉल्यूम एंड ऑल. सो सपोज आपका तो जो है एनिमल थोड़ा बड़ा है. ठीक है. सो you said no, it is not microscopic, then it's suggesting you to go to so and so. उस बुक में आपने खोला, very first thing, whether it is green or non-green. If it is green, go to the book of plants. If it is non-green, there are number of other organisms. अभी आपका क्वेश्चन बीच में है. चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका. ठीक है. If it is non-green, तो whether it is having a fixed body or whether it is having flexible body. फिक्स होगा तो शायद वो फंगाई होगा. तो ऐसा होगा, सेल वॉल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा के बेस पे. फिर वो आए, चलो आप एनिमल्स में आ गए, वेदर इट इज गॉट नोटोकॉर्ड और नॉट, और वर्टिब्रल कॉलम और नॉट. इफ वर्टिब्रल कॉलम इज देयर, देन व्हाट टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन इज देयर, इफ इट इज देयर और नॉट देयर. इफ इट इज देयर, देन व्हाट नंबर ऑफ अपेंडेजेस आर देयर. एंड धीरे 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 यू कीप ऑन गिविंग आंसर एंड यू विल रीच टू द सेम थिंग. से फॉर एग्जांपल आपको क्या मिला? यू हैव कम अक्रॉस अ सॉर्ट ऑफ बटरफ्लाई. A particular variety of butterfly. So you will use the identification key, the very first thing, whether it is microscopic or large. तो आपने कहा साहब ये तो लार्ज है, ये नॉन माइक्रोस्कोपिक है. तो गो टू सो एंड सो बुक. आप चले गए मान लीजिए 5th नंबर की बुक में, वॉल्यूम 5th वॉल्यूम में चले गए. वहां आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेदर इट इज हैविंग फिक्स्ड बॉडी और वेदर इट इज ग्रीन और नॉन ग्रीन. ग्रीन और नॉन ग्रीन. आपने कहा था कि तो ग्रीन तो नहीं, तो आपका ये हो गया. तो गो टू सो एंड सो पेज, आप उस पे आ गया. ना वो बोल रहा है कि बॉडी फिक्स्ड है और इलास्टिक है या मूवेबल है ना. तो आपने कहा ये फिक्स तो नहीं है, तो चलिए इस पे आ जाइए. फिर आप वो बोल रहा है कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड मिलती है क्या? आपने कहा नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है. तो फिर गो टू सो एंड सो बुक. फिर आपसे वो पूछ रहा है कि whether it is living in water or on land.
तो आपने कहा सभी तो लैंड में मिलता है, तो वो अलग पेज पे ले जाएगा, आपको अलग बुक में ले जाएगा, एंड देन इन दैट द क्वेश्चंस विल बी देयर। लैंड में अब कितने मिल रहे हैं, नोट अबाउट जिसका नोट अबाउट नहीं है गिनती करेंगे, ठीक है। फिर अब आपको उससे पूछेगा कि भाई उसके हाउ मेनी अपेंडिसेस आर देयर, वेदर द अपेंडिसेस आर जॉइंटेड और फिक्स्ड वन, तो आपने कहा जॉइंटेड है, तो दैट मींस इट इज क्लियर यू आर रीच टू इंसेक्ट। नाउ हाउ मेनी अपेंडिसेस आर देयर, 3 पेयर अपेंडिसेस, तो भाई पक्का हो गया कि इट इज इंसेक्ट। Then you will go and slowly you will reach to that particular place where this particular butterfly is already been identified. You will land on that page. If it is not identified, वहां तक पहुंच जाएंगे, जीनस तक पहुंच जाएंगे, but the species is not there. Then it is a hooray point for you, because this particular species has not been identified so far, and now you have got the opportunity to classify it. तो आगे आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? Whatever species has been identified every year on year, the volumes are written, है ना, new volumes are added. So you will have to check for the latest volume. So identification key is very important in order to identify particular species, whether it is already been identified or studied or not. So then the next step अपन करेंगे क्या? That is आइडेंटिफिकेशन की के बारे में लिखा है, दैट्स द सेम थिंग व्हिच आई सेड। तो देखते हैं क्या लिखा है कि इट इज अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लिविंग बीइंग्स, जस्ट फॉलो द बुक, आंसर द क्वेश्चंस वन बाय वन, यस और नो करते हुए, एंड देन इट विल बी डायरेक्टिंग यू टू सो एंड सो पेज, एंड finally you reach the place where it is already been identified, described, if it is already been discovered, and if it is not discovered it is a hooray point for you, फिर वो आपके लिए है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, okay, so now the next thing is classification. So if you use identification book, identification key, you will also reach to the classification। वहाँ पर उस बुक के अंदर वो सारा कुछ क्लासिफाई कर रखा होगा, व्हाट किंगडम, व्हाट फाइलम, व्हाट क्लास, व्हाट ऑर्डर, व्हाट जीनस, and if it is already identified, species is also there. If it is not identified, you are reached till genus. Very rare case may be there where that particular genus is even not identified, order तक पहुंच गया, अब आपको genus ही नहीं मिल रहा, then you will have to create a new genus and then you have to create new species name, ठीक है। तो उतने लकी होने के लिए तो बहुत चांस की बात है, आपको वास्तव में रिसर्च किए होंगे, तो देन यू कैन रीच अप टू दैट लेवल। सो क्लासिफिकेशन, सो ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन इज डन, एंड ये टेक्सा वर्ड क्या है? टेक्सा इज द आइडेंटिफिकेशन कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या है? जैसे इफ माई एड्रेस इज देयर, मेरा एड्रेस, तो या किसी का भी एड्रेस हम करेंगे, तो क्या करते हैं अपन? सबसे पहले वी राइट नेम, तो ये आ जाता है नेम, then we write the colony, house number and colony, then we write the name of city, then the name of the district, if it is not a district, then the name of state, then उसके बाद हम पूरा कंट्री का नाम लिखेंगे, एंड पोस्टल एड्रेस में तो वी डोंट राइट द कॉन्टिनेंट, बट इसके ऊपर कॉन्टिनेंट है। तो ये क्लासिफिकेटिव कैटेगरीज हो गई। सेम वे वी क्लासिफाई द वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वो जो इसमें क्लासिफाई कर रहे हैं उसको हम कहेंगे टेक्सा, ठीक है। तो टेक्सा आर द क्लासिफिकेटिव कैटेगरी। क्लासिफिकेशन आर is a practice of placing the organisms into various taxa, hence it is known as taxonomy, okay। So taxa क्या है? Taxa are the categories of the classification known as taxa। For the sake of classification we have several categories। Now नाम पढ़ते हैं categories के क्या क्या है। These categories are used for in the hierarchical orders, just now I placed the address the same way here, the classificative taxa। सबसे पहले क्या आएगा? kingdom। The largest taxa is kingdom। kingdom के बाद phylum। phylum, one kingdom may have 2 or more phylums, then each phylum may have 2 or more classes, then each class may have 2 or more orders, each order may have 2 or more genus, and each genus may have number of species, and sometimes the class may be so many group, तो हम उनको सब क्लास, सुपर क्लास, सब ऑर्डर, सुपर ऑर्डर ऐसे भी कर देते हैं।
स्पेशली इन केस ऑफ स्नेक्स और रेप्टाइल्स वगैरह के केस में या इंसेक्ट्स के केस के अंदर, ठीक है। सो किंगडम इज द लार्जेस्ट टेक्सा हैविंग द लीस्ट सिमिलरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप एनिमल किंगडम कर रहे हैं तो वहाँ आप ह्यूमन भी पढ़ रहे हैं और वहाँ अर्थवर्म को भी पढ़ रहे हैं और वहाँ स्पॉन्जेस को भी पढ़ रहे हैं, विच इज फाउंड इन द वाटर एंड वेयर यू आर स्टडिंग इवन द हिप्पोकैम्पस, द सी हॉर्स। So all are animals, even the birds are animals, even human. So it may have least similarity, but it is the largest group. Now इसके बाद है there are only 5 kingdoms, namely kingdom Plantae. नीचे से आते हैं तो सबसे पहले Monera, then Protista, then Fungi, then Plantae and Animalia. ठीक है। Then next क्या है phylum. Each kingdom is further divided or classified into 2 or more phylums. तो उसके अंदर थोड़ी द सिमिलरिटी का लेवल थोड़ा पास आ रहा है, ठीक है। अ प्लांट किंगडम समटाइम फाइलम्स आर टर्म्ड एज डिवीजन। देन क्लास, ईच फाइलम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर क्लासेस। देन द ऑर्डर, देन द जीनस। ये मैं आप बता चुका हूँ, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। दिस ऑर्डर यू मस्ट नो। एंड स्पीशीज अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो स्पीशीज अपन ऑलरेडी पढ़े। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सा बिकॉज दिस इज द कॉन्क्रीट, बाकी सब कुछ इमेजिनरी है जिसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर विल स्टडी अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड द 7 द टूल्स के अंदर जो है डोमेन्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। द टेक्सा इज द स्मॉलेस्ट, सॉरी, टेक्सा इज द, दिस शुड बी स्पीशीज हियर, ये गलत लिखा है टेक्सा, मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको। कलर भी दूसरा यूज करेंगे और ब्रॉड कर देंगे और टेक्सा को हटा देंगे। यहाँ लिखेंगे SPECIE, स्पीशीज। ओके, तो स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टेक्सा हैविंग लीस्ट मेंबर इन इट। एक ही टाइप के तो होंगे उसके अंदर। पूरी दुनिया में इतने सारे एनिमल्स, उनके अंदर आप ह्यूमन की स्टडी करो तो ह्यूमन तो गिनती के रह गए ना, ठीक है। The same way it may be for different. The smallest taxa होगा having the least number of members, having the most resemblance. तो वो सबसे ज़्यादा सिमिलर होंगे और सब क्रोमोसोम ये सारी चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं। We have studied that. What is the, just for the sake of your definition अगर आपको लिखना है तो इसको पॉज करिए और लिख लीजिए। अब आया नेक्स्ट काम, नोमेनक्लेचर। भाई अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, अब नाम देना है। नाम देने में कौन सा मुश्किल काम, हम कोई पंडित जी के पास नहीं जाएंगे नाम देने के लिए। दिस इज वन ऑफ द यूनिक थिंग। ओके, नेम कैसे देंगे, तो पहले नाम ऐसे ही दे रहे थे, किसी को कुछ भी नाम है, आम दे दिया, अमरूद दे दिया, गुआवा है, मतलब अमरूद ही होता है, इसको अनार बोल देंगे, इसको अंगूर बोल देंगे, इसको नीम बोल देंगे, इसको शेर बोल देंगे, इसको चीता बोल देंगे। ये क्लासिफिकेशन का टाइम गया, वो तो नाम अब हर स्पीशीज, हर लैंग्वेज के अंदर अलग अलग होगा, तो हमको यहाँ पे डिफरेंट तरीका यूज करना है। तो व्हाट इज द नेम, साइंटिफिक नेम्स कैसे देंगे, तो भाई देखिए, एवरी स्पीशीज इज नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट लैंग्वेजेस। इन इंडिया वेयर द लैंग्वेज इज सो डाइवर्स कि हम इंडिया में एक ही चीज को कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। हम यहाँ पे कुत्ता बोल रहे हैं, थोड़े से गाँव में इंटीरियर में चले जाओ, गंडक ठीक है। तो नाम ऐसे चेंज होता है। अभी तो मैंने अपने यहाँ का बोला, अभी आप साउथ में चल जाएंगे वहाँ अलग नाम से, कोई पट्टी बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। ओके, तो दिस लीड टू अ प्रॉब्लम। अब आपने कोई रिसर्च करा, सपोज यू हैव डन सम रिसर्च ऑन पर्टिकुलर स्पीशीज एंड यू हैव रिटन द एंटायर थीसिस एंड यू हैव सबमिटेड इनटू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, एंड वो यूनिवर्सिटी वाला पढ़ रहा है एंड देयर दिस पर्टिकुलर स्पीशीज नॉन बाय नेम टर्म व्हिच यू यूज इज नॉन गिवन फॉर सम अदर प्लांट और एनिमल। वो बोले ये ऐसे कैसा हो गया, कुत्ते को हम यहाँ पे श्वान बोलते हैं ना, वो संस्कृत में श्वान, आपने श्वान के ऊपर लिख दिया खूब सारा और आपने भेज दिया यूके में, और यूके वाला पढ़ रहा, बोले श्वान, इनके श्वान के 4 पैर होते हैं, हमारे तो बर्ड होती है श्वान। तो दैट इज व्हाई इट लीड टू द वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो देन इट इज फेल्ड कि भाई हमको एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर होना चाहिए विच इज ओनली फॉर साइंस, ठीक है। तो दिस लीड टू द नीड ऑफ साइंटिफिक नेम विच इज यूज्ड इन द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कार्ल वॉन लिन करके एक साइंटिस्ट थे, स्विस साइंटिस्ट, स्वीडन के रहने वाले। इन्होंने कहा भैया अब ऐसा करते हैं कि एक खास नाम बनने का तरीका, भाई देखिए दुनिया भर में नाम देने का तरीका यही है कि हम क्या करते हैं, उसकी जाति या उसके पेरेंट या उसका फैमिली नेम, उसके साथ में उसका नाम जोड़ देते हैं, तो इट इज इजी टू रिकॉग्नाइज।
इजी टू रिकॉग्नाइज, भाई ये शर्मा है और ये अमित इसका नाम है। तो मतलब अपन देखते ही समझ आ रहा है कि अमित शर्मा बोलते ही अमित इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड शर्मा इज द कम्युनिटी और द ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं या फैमिली जिससे कि वो डिसेंड हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कार्ल कार्ल वॉन लिंच जो था उसका नाम, उसने जो है अपना नया तरीका दिया, उसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज कंसिस्टिंग ऑफ टू नेम्स। फर्स्ट नेम जो होता है दैट इज द जीनस नेम एंड द सेकंड नेम इज स्पीशीज एपिथेट, या आप सीधा बोल सकते हैं स्पीशीज नेम। तो भाई यहाँ पे दो नाम के हो गए, पहला नाम जीनस नाम होगा और दूसरा स्पीशीज नाम होगा। द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज रिटन इन इटैलिक्स, हमेशा तिरछा तिरछा लिखेंगे। इटैलिक्स जानते हैं ना आप, भी टाइप इटैलिक्स थोड़े से स्लांटिंग हो जाता है। व्हेन हैंड रिटन दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, अलग अलग लाइन अंडरलाइन करेंगे उसको। ठीक है, जीनस नेम विल ऑलवेज बी बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, जीनस नेम विल ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। स्पीशीज नेम जीनस नेम के फर्स्ट लेटर को छोड़कर बाकी सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखेंगे। स्पीशीज नेम आर नेवर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। अब लिख लो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है अगर वो साइंटिफिक नहीं है तो। ठीक है, अगर कोई हिस्ट्री में कोई बात कर रहा है या मैथमेटिशियन बात कर रहा है तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम शुड ऑलवेज बी स्मॉल एंड इजी टू प्रोनाउंस, इजी टू लर्न, है ना। अब ये कोई ऐसा कोई फंडा नहीं है, कोई पक्का नहीं है कोई। अब देयर आर सम नेम व्हिच आर easy for them but difficult for us. Okay, two different order have same genus name. No two different order may have same genus name. ये very important thing है। दो species, दो अलग अलग genus के नेम पे अलग अलग species के नाम same हो सकते हैं। There are number of species which have indica or indicana. Indicana is actually standing for India. ये indica इंडिया के लिए standing, मतलब all those mangoes which are found in India, they are also named as Mangifera indica. Okay, there are number of other species which are also specified by Indicana here. तो species name Indicana या Indiana वो बहुत सारा कई जगहों पर आपको सेम मिल सकता है, but the genus name under two different order can never be same. Again क्या मिल रहा है इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पीशीज नेम अंडर डिफरेंट जीनस नेम कैन बी सेम, वो मैंने आपको बता दिया। ऑफन बायोलॉजिकल नेम्स आर डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, बिकॉज ये अब क्या रिस्पेक्ट है उन साइंटिस्ट का, फिलोसोफर का which who has studied about the plants and animal first time. Sometime after biological name you may get a short name, that name may be scientist name. जैसे for number of species which are being given names are given with Carl कैरोलस लिनियर, तो उसके ब्रैकेट में LINN लिखे हुए मिलेंगे। तो लिन इज एक्चुअली स्टैंड फॉर लिनियस, कैरोलस लिनियस इन रेस्पेक्ट। ओके, समटाइम बायोलॉजिकल नेम कैन आल्सो कंसिस्ट ऑफ थर्ड नेम, तो वहाँ पे थर्ड नेम जो है सब स्पीशीज का होता है। कई बार स्पीशीज जो होती है वो इतनी धीरे से डिफरेंट हो रही होती है और नई स्पीशीज बनने वाली होती है, तो उसको सब स्पीशीज कर। सम कॉमन बायोलॉजिकल नेम जो है यहाँ पे देते हैं, सराना टिग्रिना, इट इज नेम स्टैंड फॉर द फ्रॉग, where the capital R and the rest are small, and देखिए italics में लिखा Magnifera indicana, where Magnifera genus name starting with capital M, rest all are small letter, all are written in italics. If hand written हमको इनको अंडरलाइन करना होता है, Magnifera अलग, indicana अलग, रेटस चूहे के लिए कहते हैं। ठीक है, ओके, नाउ नाम तो आप कुछ भी दे देंगे, कोई भी दे देगा, है ना। जैसे आप कोई गाँव वाला हो तो गाँव के स्टाइल में देगा, शहर वाला कहे इटालियन कुछ अलग तरह से देंगे, जर्मन कुछ अलग, स्पेनिश कुछ अलग तरीके से, कोई पोर्चुगीज को अलग तरीके से। तो भाई इनको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? Who will recognize? So there is an agency which recognize, not one but there are number. तो वो recognize or register the biological name. तो देखिए, not it's not that any name will be accepted. क्या पता वो नाम पहले दे रखा हो किसी ने, किसी और species को, or the name is so complicated, or it may be an abusive language name for some which is used in one language and other language it may be abusive. तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए देर आर एजेंसीज। कौन है एजेंसीज? ये देखिए, ICBM, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, दिस ऑल द प्लांट्स नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देम। एक इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, ये भी BN है लेकिन ये इज डिफरेंट ग्रुप। इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सो इफ एनिमल्स यहाँ दे दीजिए, बैक्टीरिया वहाँ दे दीजिए, plant है वहाँ दे दीजिए, there are other also, is some examples. So that's all in this video.
So please, if you like the video, please like and share with others. और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लें, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, सब्सक्राइब करेंगे एक बटन आपके इसमें आ जाएगा सब्सक्राइब, तो व्हेनेवर आई मेक ए न्यू वीडियो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन। बेल भी बजा सकते हैं, घंटी जैसी आकृति क्या देखो, आई एम नॉट ए वेरी फ्लुएंट इन दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, सो आई कैन नॉट से ऑल दीज थिंग्स, बट हाँ ठीक है, आई नो मेरा तो टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, नॉट फॉर द जनरल पीपल। सो मुझे कोई इतना दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू लाइक यू से, इफ़ यू डोंट लाइक डोंट से। इफ़ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट यू कैन ऑलवेज comment. If you did not understand anything or you have got some queries, you can always write in the comment, and your comment will be read, and if required answer will be given. That's all in this video. वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन टॉपिक्स हैं, if you want to understand you need to spend time. That's all in this video. Thank you for staying and learning the video. So it's a video for everyone. ये कोई particularly कोई 11th क्लास के बच्चे के लिए नहीं है, कोई भी पढ़ सकता था इसको. That's all. Thank you.